Good morning, students. Yesterday I taught you about magnetic field produced by a conductor of finite length carrying current. Then, in special cases, I taught you about the magnetic field due to conductor of infinite length. The next application was magnetic field due to a circular wire loop carrying current. Now, rules to find the direction of magnetic field. First, due to straight conductor, we have right hand thumb rule. Hold the straight conductor in your right hand in such a way that thumb is in the direction of current. Then the curvature of fingers of your right hand will give the direction of magnetic field. So I have posted couple of pictures to understand right hand thumb rule. So it is practically difficult for me to show you. So you try to understand. If you have any problem, then you may contact me. Otherwise, I will repeat this part when we physically meet in a classroom. Uh, so according to this rule, if suppose this is a table and you drill a hole at the center of your table and pass a long conductor perpendicular to the table. So this is your table, this is your conductor carrying current and this is table और ये यहाँ से आपने पास किया और बिल्कुल perpendicular table के. तो magnetic field due to this infinite conductor, you know, it is given by B is equal to K 2KI अपॉन आर या ए, जो भी आप लेना चाहें. तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर की इस इक्वेशन से दी जाएगी. ये पॉइंट थोड़ा दूर है तो ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम होगा. बट अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ये यहाँ पे डायरेक्शन, ये इट विल बी अलोंग दिस टेंजेंट. यहाँ पे भी डायरेक्शन इसी तरफ होगी, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड कम होगा. और यहाँ पे डायरेक्शन निकालनी हो राइट हैंड थंब रूल से, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी. यहाँ पे निकालनी हो, यू ड्रॉ टेंजेंट, इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की. सो दीज concentric circular loops, they represent magnetic field line. यहाँ पे मैग्नीट्यूड जितना होगा उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे. यू कैन इमेजिन कि ये जो हमारा कंडक्टर है, इसके ये एक, यू कैन से दिस इज़ अ बैंगल, और ये टेबल पे बैंगल रखी हुई है, और ये बैंगल के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे ये यहाँ से कंडक्टर पास कर रहा है. ये पॉइंट, ऑल दोज पॉइंट विच आर ऑन दिस बैंगल, दे विल बी at same distance from this current carrying conductor. ये this is R. So all these point on the bangle placed on the table with this conductor as center of this bangle. तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मैग्नीट्यूड सभी जगह बराबर होगा, बट डायरेक्शन का फ़र्क होगा. यहाँ पे अगर आप इस बैंगल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की. हेयर यू अगेन ड्रॉ टेंजेंट, तो इस तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ पे इस तरफ, एंड सो ऑन. In order to find direction of magnetic field due to a circular wire loop, we again use this rule with a slight modification. In this, to determine the direction of magnetic field in case of infinite straight conductor, thumb is in the direction of current. This is direction of flow of current, so thumb will be in the direction of current flowing in the conductor. But when you are to find the direction of magnetic field due to a circular wire loop carrying current, in that case ये curvature will be in the direction of current. राइट हैंड की फिंगर का curvature, it will be in the direction of flow of current in the wire loop.
और जो थंब है दैट विल गिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप अपने हाथ की फिंगर्स को कर्व करेंगे लाइक दिस, और थंब शुड बी परपेंडिकुलर टू द कर्वेचर ऑफ फिंगर। ये बिल्कुल ऐसे, इट शुड बी परपेंडिकुलर, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Now some applications. I have a square wire loop of side 2A carrying current I, and question is find magnetic field at the point of intersection of diagonals. So मैं पहले ये पार्ट ले लेता हूँ, दिस साइड ए बी ऑफ द स्क्वायर लूप कैरिंग करंट, आई करंट जा रहा है इसमें। तो इफ़ इट इज़ 2A, तो ये आपका पॉइंट जो है इट विल बी एट स्मॉल ए डिस्टेंस P पॉइंट, जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल है। तो दिस डिस्टेंस PM इज इक्वल टू स्मॉल ए। तो you know magnetic field due to a current conductor of finite length is given by, it is given by Ki upon A sin phi 1 plus sin phi 2, ये थी। तो इन दिस केस ये एंगल हमारा था phi 1, ये था phi 2। सो इस केस में दीज आर 45 डिग्री ईच, phi 1 भी 45, phi 2 भी 45। सो यू सब्सिट्यूट वैल्यू है sin 45, यू नो 1/√2, तो ये B1 मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय साइड AB ऑफ दिस स्क्वायर लूप। Now, according to right hand thumb rule, the direction of this magnetic field at point P will be perpendicular to the page and directed inward. And this is indicated on the page like this, circle के अंदर cross। ये बताता है magnetic field perpendicular to the page and directed inward. If you apply this राइट हैंड थंब रूल टू डिफरेंट साइड्स, BC के लिए लगाएंगे तो BC की मैग्नेटिक फील्ड P पे उसकी डायरेक्शन में इनवर्ड होगी, CD की मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड, और DA साइड की मैग्नेटिक फील्ड भी इनवर्ड। सो रिजल्टेंट विल बी 4B1, और B1 की वैल्यू ये है हमारी। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। वन थिंग विच आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर, ये BC की मैग्नेटिक फील्ड निकालनी हो तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट हुआ हमारा। अगेन P पॉइंट की डिस्टेंस, दिस इज 2A, P पॉइंट की डिस्टेंस इस कंडक्टर से, अब हमारा कंडक्टर A है BC, ये फिर से स्मॉल a है, ये एंगल फिर से 45 का phi 1 और phi 2, ये phi 1 phi 2 फिर से। तो इसी तरह इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इतनी आएगी। सो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, और इन वेक्टर फॉर्म लिखना हो आपने तो ये इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन भी इनवर्ड ही होगी। नाउ अनदर न्यूमेरिकल, दिस इज हाइड्रोजन एटम, ये प्रोटॉन है एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड रेडियस ऑफ ऑर्बिट इज 0.5 एम्पियर। तो फर्स्ट पार्ट इज फाइंड करंट एंड देन मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक राउंड लगाने के बाद फिर से गुजरेगा, इसकी वेलोसिटी स्पीड दे रखी है, तो वी कैन से हर T टाइम के बाद या T सेकेंड बाद ये यहाँ फिर आ गया, T इस टाइम पीरियड। तो T सेकेंड में जब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज जाएगा, कितना चार्ज जाएगा, E चार्ज। तो T सेकेंड में इस पॉइंट से कितना चार्ज जाएगा, E कूलम, और एक सेकेंड में कितना जाएगा, E/T। सो दिस द चार्ज विच विल फ्लो थ्रू दिस पॉइंट आफ्टर every second, and this is current flowing, charge flowing per unit second, charge flowing per unit time is called electric current। तो T सेकेंड में E चार्ज, एक सेकेंड में इतना चार्ज फ्लो करेगा, सो दिस इज करंट। सो वी नो स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम,
इसने एक राउंड में 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करी और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए कैपिटल टी टाइम विच इज़ कॉल्ड टाइम पीरियड। सो टी फ्रॉम हेयर, ये वी को हम टी की जगह पे ले गए तो ये आ गया। और अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट करूँ, आर की वैल्यू गिवन है, ये एंगस्ट्रम में थी तो मैंने इसको मीटर में बदल लिया बाय मल्टीप्लाइंग विद 10⁻⁻10 मीटर। सो ये हमारा टी आ जाएगा इससे। नाउ आई इज इक्वल टू ई बाई टी, तो ये पुट करिए वैल्यूज़, ये आ गया हमारा करंट। नाउ हमने आपको ये बताया था कि करंट कैरिंग वायर लूप प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो ये अगर वायर लूप है, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है। बट इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम या एनी अदर एटम, ये न्यूक्लियस है तो ये यहाँ पे बिना किसी फिजिकल मीडियम के, यहाँ पे तो तार के अंदर से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, बट हेयर विदाउट एनी फिजिकल मीडियम ये इलेक्ट्रॉन चल रहा है। सो इसके कारण करंट फ्लो करेगा इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी है वो निकालेंगे। वी नो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ वायर लूप इससे दी जाती है 2k πi/r। सो k यू नो 10⁻⁻7 होता है मैग्नेटिज्म में, पाई यू नो 22/7, आई हमने निकाल लिया है, और ये आर। सो इट इज़ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। नो अनदर न्यूमेरिकल, ओ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है विच इज़ प्रोड्यूस बाय दिस सर्कुलर वायर लूप कैरिंग करंट आई एंड दिस इनफाइनाइटली लॉन्ग स्टेट कंडक्टर, दोनों ने मिलकर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करी। तो हमने ये आपको बताया था कि इफ़ दिस इज़ अ कंडक्टर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाली थी आपने, दिस डिस्टेंस वाज ए एंड ये करंट आई, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड थी 2k/i/a। अगर ये r लेंगे हम डिस्टेंस तो यहाँ r हो जाएगा। अगर हम इसको रोटेट करें, ऐसे कर दें, ये इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर और ये पॉइंट है, इसमें करंट आई जा रहा है, और ये r डिस्टेंस या a डिस्टेंस जो भी लेना है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अगेन इट विल बी b इज इक्वल टू 2k/i/r या a, जो भी आप डिस्टेंस लें। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बस इसमें कंडक्टर सीधा हो गया, इसमें वर्टिकल था। सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर एट O is given by this due to state conductor. In direction according to right hand thumb rule, it will be perpendicular to the page and directed outward. Outward हो तो सर्कल के अंदर डॉट, इनवर्ड हो तो सर्कल के अंदर क्रॉस। देन ये अब सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड निकालिए। सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये होता है। याद करने के लिए, इसमें पाई नहीं आता, इसमें पाई आता है, बस दिस इज़ ओनली द डिफरेंस। सर्कुलर वायर लूप के फॉर्मूले में पाई आएगा, इसमें पाई नहीं आएगा, बाकी सेम है सारा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस करंट के कारण जो हमारे वायर लूप में है वो भी परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। तो दोनों की डायरेक्शन आउटवर्ड, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ B1 एंड B2 क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, इसमें यू कैन टेक कॉमन 2k/i/r, तो ये आ जाएगा। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। नाउ देन लास्ट क्वेश्चन ऑन circular loop and state conductor. Again here we are to find magnetic field at point O. This is state conductor, infinite long, carrying current I, और ये इसको हमने U शेप दे दी कंडक्टर। तो ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। आई कैन डिवाइड दिस U शेप कंडक्टर इनटू 3 पार्ट्स। एक तो हो गया यहाँ से ये स्ट्रेट पार्ट दिस, दूसरा सेमी सर्कुलर पार्ट यहाँ तक,
तीसरा ये फिर से हमारा स्टेट इनफाइनाइट कंडक्टर। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी हो तो ये इतनी होती है, अगर यहाँ निकालनी हो, इफ़ यू रिमेंबर, अब हम आ गए मिडल के बजाय एट नियर द एंड, ये है एंड ऑफ कंडक्टर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इट विल बी 2 के बजाय KI/R, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आधी होती है, मिड पॉइंट पे इतनी होती है, किनारे पे आ जाएंगे इस किनारे पे तो मैग्नेटिक फील्ड इससे हाफ, ऐसे ही इस किनारे पे जाएंगे तो इसमें भी क्या कहते हैं, हाफ हो जाएगी। यहाँ देखना है तो ये इस किनारे के यहाँ पे सामने इट विल बी हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ एट पॉइंट P। सिमिलरली लोअर एंड पे मैग्नेटिक फील्ड ये इससे हाफ होगी। तो इफ़ यू लुक केयरफुली दिस पॉइंट O इज़ इन फ्रंट ऑफ दिस एंड, तो इसके कारण स्ट्रेट पार्ट ऑफ दिस वायर मैग्नेटिक फील्ड B1, इसके कारण B2 और इसके कारण B3। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल सभी की डायरेक्शन इट विल बी परपेंडिकुलर टू द पेज एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड। सो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट पार्ट के कारण, यहाँ 2 नहीं आएगा, अगर यहाँ जैसे पॉइंट होता तो 2 आना था, बीच में होता। सो इट इज KI/R और ये डायरेक्शन आउटवर्ड। सर्कुलर पार्ट पूरा सर्कल होता तो यहाँ 2 आता है, आधा सर्कल है सेमी सर्कल तो यहाँ 2 नहीं आएगा। इसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ पाई का है। और ये लोअर पार्ट है, इसके इस किनारे पे है, तो दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू थर्ड पार्ट ऑफ द कंडक्टर। सो ये और ये इनको ऐड कर दीजिए, इट विल बिकम 2KI/R एंड ये दिस टर्म, इसमें कॉमन लीजिए KI/R, ये आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज एम्पेयर सर्क्यूटर लॉ। Ampere's circular law helps us to determine magnetic field in several cases. Like Gauss theorem से, Gauss law से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। Ampere's circular law helps us in determining or calculating magnetic field due to current. Now it states that closed line integral of magnetic field is equal to mu naught times the total current passing through that closed path. चलिए हमारे पास एक वायर है, दिस इज वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इट इज कैरिंग करंट I। इमेजिन कीजिए कि ये एक कड़ा है, लूप, क्लोज पाथ, ये बिल्कुल क्लोज। इस कड़े को आप टेबल पे रख दीजिए और टेबल के सेंटर में एक छेद कर दीजिए, ये आपका लूप, और एक टेबल के सेंटर पे या इस लूप के सेंटर पे आपने एक होल कर दिया और एक तार को बिल्कुल टेबल के परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया। सो दिस क्लोज पाथ इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप। एम्पेरियन लूप। अच्छा, इसको आप छोटे रेडियस का हो, बड़े रेडियस का हो, डज नॉट मैटर, बस सिर्फ एक कंडीशन है कि क्लोज होना चाहिए और ये टेढ़ा मेढ़ा भी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ओनली द कंडीशन इज कि इट शुड बी क्लोज पाथ, इट इज़ इमेजिनरी पाथ, एंड दिस current carrying conductor is passing through the center of this Amperian loop। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस कंडक्टर ने जो प्रोड्यूस करी, यहाँ पे लेट इट बी बी, इसका मैग्नीट्यूड यहाँ भी बी होगा, यहाँ भी बी होगा, बी 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 बी। रीज़न बीइंग, अगर आप टेबल पे ये कड़ा रखा हुआ है आपने, दिस इज बैंगल और ये हमारा टेबल है, तो ऐसे ही टोल्ड ये सारे पॉइंट जो इस लूप के ऊपर होंगे सारे सेम डिस्टेंस पे होंगे और मैग्नेटिक फील्ड सभी जगह कड़े के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे इक्वल होंगे, ओनली द डिफरेंस विल बी इन डायरेक्शन। सो इफ यू इंटीग्रेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय दिस कंडक्टर एट दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, तो इसका और ये है स्मॉल लेंथ ऑफ दिस क्लोज पाथ, तो दिस इज स्मॉल लेंथ ऑफ क्लोज पाथ, ये एम्पेरियन लूप,
और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह। सो ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज डीएल वेक्टर। ऐसे ही यहाँ पे यू कैन ड्रॉ टेंजेंट, ये हो गया आपका डीएल लेंथ और ये हो गया हमारा बी की डायरेक्शन। सो डीएल वेक्टर बी वेक्टर। सो इफ यू इंटीग्रेट बी ऑन दिस क्लोज पाथ, then according to Ampere law this is equal to mu naught into I. This is called closed line integral of magnetic field. अगर यहाँ S होता स्मॉल सरफेस एरिया तो ये कहलाता क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। dV होता स्मॉल वॉल्यूम तो ये कहलाता क्लोज वॉल्यूम इंटीग्रल। ये dl है स्मॉल लेंथ ऑफ दिस एम्पेरियन लूप या क्लोज पाथ, सो इट इज क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू नॉट विच इज परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम इनटू करंट जो इस तार में पास कर रहा है, जो इसके कड़े के अंदर से जा रही है। अगर मान लिया जाए कि ये सेंटर पे नहीं भी है, ये यहाँ जैसे से तार जा रही है, तब भी ये लॉ ट्रू है। सो अगर इफ देयर आर मोर देन 2 वायर्स विच आर पासिंग थ्रू दिस वायर लूप, ऐसा है केस, तो टोटल करंट अब एम्पेरियन लूप से जो पास कर रहा है इट इज I1 प्लस I2, सो दिस विल बी एम्पेयर। ना इफ these two wires which are passing through Amperian loop they are carrying current in opposite direction, जैसे इसमें ऊपर जा रहा है, इस तार में नीचे जा रहा है, तो एम्पेयर लॉ में ये आएगा यहाँ पर। सो इट इज़ अ नेट करंट, एक में ऊपर जा रहा है, आई हैव टेकन इट पॉजिटिव, और जो नीचे आ रहा है नेगेटिव, सो दिस इज नेट करंट पासिंग थ्रू द एम्पेरियन लूप। इन दिस केस दिस इज यू शेप्ड वायर, आई करंट ऊपर जा रहा है और उतना ही करंट नीचे आ रहा है। सो इट इज़ दिस करंट इफ टेकन पॉजिटिव, सो इट इज़ आई, और दिस करंट विल बी नेगेटिव, सो आई माइनस आई जीरो। सो दिस इज एम्पेयर circular law for this conductor. Now let us give proof. Now although this law is applicable to all types of closed paths, irregular हो सकते हैं, elliptical हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, but here I am going to prove this law only for circular path. So according to Ampere law, closed line integral of magnetic field is equal to this. ये हमारे पास एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर जो है इस इमेजिनरी वायर लूप, इमेजिनरी लूप के सेंटर से पास कर रहा है। So this is a point P on the imaginary Amperian loop. It is at distance small r from the current carrying wire. Here magnetic field is B. So according to right hand thumb rule direction magnetic field की ये होगी। Take small length of this Amperian loop. ये tangent जो है it will give direction of dl small length. So they are parallel. B magnetic field produced by current and this small length of Amperian loop, they are parallel. यहाँ ड्रॉ करना है आपने, दिस द स्मॉल लेंथ ऑफ एम्पेरियन लूप, ड्रॉ टेंजेंट, दिस द डायरेक्शन ऑफ दिस स्मॉल लेंथ। मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल वो भी इसी तरफ होगी। सो यहाँ पे भी दोनों आपके पैरेलल होंगे। ओनली द डिफरेंस विल बी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ नीचे की तरफ है, यहाँ ऊपर की तरफ है, बट मैग्नीट्यूड यहाँ भी है, यहाँ भी ही होगा। रीजन बीइंग ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ऑल दीज पॉइंट्स आर एट सेम डिस्टेंस। सो B and DL they are parallel, so ये आ जाएगा cos 0 is 1, B is constant at every point on this Amperian loop, so B को बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन DL का इट इज़ L होगा, लेकिन दिस L लेंथ ये स्मॉल लेंथ प्लस ये स्मॉल लेंथ प्लस ये सारी स्मॉल लेंथ्स अगर हम इसकी ऐड करेंगे इट विल बी 2 पाई r, सो L is 2 pi r. So B magnetic field, magnitude of magnetic field at this point or this point due to this
infinite state current carrying wire is given by 2 Ki upon R. R कट गया हमारा, and this is 4K pi I. K you know it is mu naught upon 4 pi. So ये pi और 4 कट गए, it gives mu naught into I. Now then, applications of Ampere circuital law. First application, magnetic field due to state current carrying conductor. हमने इसको बायोट-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से भी निकाला था और वो काफ़ी मुश्किल सा था, बट हियर इट इज़ वेरी इजी टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर. वेरी वेरी सिंपल. सो एम्पियर लॉ लगाते हैं. लेट अस कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड. ये हमारा इनफाइनाइट स्टेट कंडक्टर कैरिंग करंट है. इमेजिन दैट दिस state current carrying conductor is passing through imagine that ये जो हमारा स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर है ये इस लूप के सेंटर से पास कर रहा है. वही अगेन टेबल के ऊपर एक कड़ा रख दो और इसके सेंटर पे जो इस लूप का सेंटर है वहाँ पे एक छेद करके एक वर्टिकल वायर निकाल दो और इस वायर में करंट फ्लो कर रहा है. तो ऑल द पॉइंट्स इसके ऊपर जितने भी होंगे दे विल बी एट इक्वल डिस्टेंस. दिस इज कॉल्ड एम्पेरियन लूप. इसका रेडियस कम ले लीजिए आप, ज़्यादा ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट आएंगे. सो दिस इज एम्पेरियन लूप. इट इज़ जस्ट इमेजिनेशन. नाउ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकालनी है P पॉइंट और इसकी डिस्टेंस इट इज इक्वल टू R. सो लेट हियर मैग्नेटिक फील्ड इज B. टेक स्मॉल लेंथ ऑफ दिस एम्पेरियन लूप. ड्रॉ टेंजेंट. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल लेंथ. ये छोटे वाला है और ये बड़े वाला एरो जो है इट इज रिप्रेजेंटिंग मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. So apply Ampere law. According to Ampere law, B dot dl का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. एक ही कंडक्टर है, दो होते तो दोनों का करंट लेना था, सो ओनली वन, सो इट इज आई. Since these are parallel to each other, so it is B dl cos 0. B is constant at this point. इन सभी पॉइंट्स के ऊपर B constant, so take B outside. इंटीग्रेशन ऑफ dl is 2 pi r. So from here ये 2 pi r को नीचे ले आइए. B is equal to this. So if you want to write it in terms of k, तो multiply this side by 2 and divide by 2. तो 2 से डिवाइड करेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 2. So this is k. So this is magnetic field. So very simple to calculate with the help of Ampere law. So there are 2 more applications जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.